Okay. Did I do the recording beforehand only? Was it going on? No, sir. Oh, fine. Okay. Y is equal to, somebody said it, y is equal to mx plus c. Absolutely correct. Y is equal to mx plus c, students. It's an equation of a straight line, students. ये बहुत इसी बात है, straight line equations are much more or quite often used in physics. What does this y represents? Anybody? What does y represent, students? The Y, y coordinate. pardon? So the y coordinate. Okay, y coordinate. That means it represents the y coordinate. Agreed? This is the y coordinate we consider. Okay, what does this x represents? The x coordinate. Coordinate. Okay, x coordinate. Okay. Now, out of y coordinate and x coordinate, which one is dependent and which one is independent? The x is independent and y is dependent. Okay, very good. Very good. It's Gauri. But you answered, Gauri? Yes, sir. Okay, fine. ये है dependent और ये है independent. Students, is the audio and video fine with you all? Yes, sir. Okay. ये है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी स्टूडेंट्स, अगर किसी ने लिखा y proportional to x, that means the value of y depends on to x. Everybody be with me, क्योंकि अभी हम डेरिवेटिव्स पे जाने वाले हैं. That's why this is more important. इसके ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है. इसका मतलब any change in the value, any change in the value of x will certainly bring in the change in the value of y. Any change in the value of x certainly bring a change in the value of I. I can say change, I can write it in terms of dx. dx का मतलब change in the value of x. dy I can write it as change in the value of y. अब ये जो change in the value of x है, ध्यान से सुना students, change in the value of x है. It can be with respect to time. It can be with respect to time, because generally when you speak about in physics, students, when you go with respect to physics, what are the physical quantities you all have come across? मुझे बताओ, जो तुम लोग ने 9th में 10th में बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज तुम लोगों ने किए हैं, तो कौन से टाइप की किए हैं? सर, हमने ऐसे क्वांटिटीज किए हैं जहां पे हमें टाइम डिपेंडेंस ज्यादा है. सिंपल एग्जांपल आई कंसीडर डिस्प्लेसमेंट. चलो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बाय इटसेल्फ इज चेंज इन पोजीशन. Shortest distance covered by a body from its initial position to final. क्या ये क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट का मतलब? Yes. Shortest distance covered by a body in a specified direction, ये हुआ displacement. For example, you started from point A, you reached at point B. This was 4 meters. Think as if this is you are traveling towards north. ये है तुम्हारा east. Please everybody listen carefully. ये north है, ये west है और ये east है. ये south हुआ. ये सोचो कि तुम तुम्हारे घर से निकले हो स्टूडेंट्स, यू रीच एट पॉइंट बी और तुम 4 मीटर चले हो. Are you getting it? Towards east. Then you walked 3 meters towards north. Now my question to you students, what is the magnitude of displacement and what is exactly the displacement covered? What will be your answer? What is displacement and what is magnitude of displacement over here? So 5 meters. Displacement is 7 meter and magnitude of displacement is 5. Absolutely correct. So if in case if I speak about magnitude of displacement is 5, what is displacement? 7? Yes, sir. That is absolutely wrong, my dear. Displacement is the shortest distance covered by the body from its initial position to final. Initial कहाँ पे थे तुम? A पे थे ना? गए कहाँ पे? You went at point C, due north. तो students ये हुआ ना तुम्हारा displacement, shortest distance. और ये 4 है 3 है और अगर मैं बताऊं ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है? 90. हेलो, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इनके बीच में तो एंगल 90 हुआ. तो ये आंसर कितना होगा बच्चे पाइथागोरस? 5 meters. तो ये क्या है? ये वेक्टर है स्टूडेंट्स. तो इसका आंसर क्या होगा? 5 meter ड्यू नॉर्थ ईस्ट. देखो,
I've given you magnitude along with direction. Students, I give you magnitude along with direction. Is this clear to all of you all? Yes, Students, sir. Yes, sir. is it getting clear? Okay. ये क्या मैंने बताया? Magnitude of displacement, students. Magnitude of displacement का मतलब क्या है? Total length covered. Total length covered by the body during the course of journey. शुरू किया A से गया B से गया C. What is the total length? Simply 7 meter. तो ये मैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या पूछा मैंने तुम्हें? डिस्टेंस. ये क्या पूछा मैंने? डिस्प्लेसमेंट. क्या ये क्लियर हुआ सबसे पहले स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. And what you must have done it in vectors. Vectors के अंदर तुमने क्या होगा? What exactly we consider displacement and distance? अभी ध्यान से सुनो. Where am I going with respect to calculus part of it, maths part of it? The distance, see, change in the value of y will certainly bring a change in the value of x. But this change takes place with respect to time. This change takes place with respect to time. यानी suppose, ध्यान से सुना students. अगर suppose यही जो बंदा move हो रहा है along AB, if the person is moving along AB and the person is moving with respect to time, in time t the person has reached over here t1, in time t2 the person has reached over here. ध्यान से सुनना students. In time t3 शायद वो यहाँ पे आएगा. तो can I say distance भी change हो रहा है, distance भी change हो रहा है, indirectly displacement is also changing with respect to time. So can I say this is a displacement? So I can write on dx is a displacement. Change का मतलब क्या हुआ? ये initial position, ये final position. तो ये हुआ मेरा change in displacement. लेकिन ये change in displacement किसके हिसाब से हुआ है? With respect to time. तुमने घड़ी पहनी हुई थी, जब भी तुमने शुरू किया तो घड़ी 0 seconds दिखा रहा था. जब भी तुमको चले तो घड़ी ने कुछ seconds दिखाया, तो ये क्या हो जाएगा? Change in time. Students, ये जो change in displacement with respect to change in time will give me a physical quantity, and what do we call this as? Speed. अगर मैंने इसको distance लिया upon time लिया तो ये मेरा speed हो जाएगा. Distance upon time is speed. लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर arrowhead डाल दिया तो इसको तुम बोलोगे displacement. Change in displacement with respect to change in time. Students, will you call this as speed or will you call this as velocity? क्या बोलोगे? क्या इसको Velocity. velocity बोलोगे? Velocity. यानी see, the scalar part and the vector part has to be taken care of. लेकिन what am I trying to throw over here is that velocity, students, velocity is a function of displacement. That means velocity is a function of change in displacement with respect to change in time. क्या ये clear हुआ? When I write down y proportional to x, when I write down dy proportional to dx, therefore dx by dt, differentiating dx by dt, I can get a physical quantity which can be written as dy by dt, and that is I can give you v. ये मेरा v भी हो सकता है और ये मेरा dx by dt हो सकता है. एक physical quantity ये हो गया. तो ये क्या बन गया? We consider as a function. ये function किसके ऊपर डिपेंड होता है? वेरिएबल के ऊपर डिपेंड. यानी तभी तुम देखोगे ना y और x का मतलब क्या हुआ? y we consider is a function we consider, okay, and x is a variable. Any change in the value of x, students, any change in the value of x will certainly bring a change in the value of y. तभी जाके students, तभी जाके जब तुम्हें किसी ने पूछा, students, draw the graph, ध्यान से सुनना, draw the graph of displacement versus time. तो मुझे ये बताओ students, जब भी तुम लोगों ने 9th में तुमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था, sorry, when you plotted the graph in 9th standard, students, did you write down displacement on x-axis? Did you write down displacement on x-axis when you define the axis? या displacement तुम लोग ने x-axis पे लिया है या displacement को you all took it on y-axis? What will be your answer? Displacement versus time. Displacement was on which axis? Y-axis. And time was on x-axis, students. Recollect your 9th standard. यानी
displacement was changing with respect to time. जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता गया. अभी वो डिपेंड होता है, क्या तुमने इक्वल डिस्प्लेसमेंट लिया है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा. अगर डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हुआ तो ग्राफ कर्व भी आ सकता है, ग्राफ कर्व भी आ सकता है. तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि whenever you try to go for graph, स्टूडेंट्स, ग्राफ से ही हम डेरिवेटिव्स में जाते हैं, ग्राफ से ही डेरिवेटिव्स में जाते हैं. तो ग्राफ के अंदर हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c. Once again, y we consider as a y coordinate, x is the x coordinate, y is always a dependent variable, x is an independent variable, y is proportional to x. Any change in the value of x, any change in the value of x will certainly bring a change in the value of y. Therefore, y is a function and depending onto x, x becomes a variable. But now, if this variable is changing with respect to a particular physical quantity called time, then even I'll get a new quantity. Am I getting a new quantity in that case? Example, if I consider the rate at which displacement takes place, I'm getting a new quantity. What is that we call? Velocity. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, Please, sir. all the students who enter the meeting, not only a few of them, I'm not asking a few, all the students who enter the meeting, please. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kirat is asking for book. Please, the book is S.L. Arora. Or you can go for ABC or physics. Again, my thing is never to buy books straight away, students. हमेशा एक ध्यान में रखना, जब भी बुक्स वगैरह खरीदते हो ना तो ऐसे ब्लाइंडली खरीदते नहीं है. अगर तुम बुक स्टॉल पे भी जाओगे, सपोज नाउ थिंग्स ऑल अनलॉक हो चुका है, ऑलमोस्ट 70 to 80% अनलॉक हो चुका है, तो अगर तुम बुक स्टॉल पे भी जाओगे स्टूडेंट्स तो वहां पे खड़े रहो. Go along with your dad or mom in that case. Ask for both the books. Look into both the books. Look into the physics part of it. Look into the physics part जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है, उसी को खोलो. उसमें 10-15 मिनट वहां पे खड़े होकर पेजेस को ब्राउज करो, उसके एग्जाम्पल्स देखो, फिर तुम सिलेक्शन करो कि नहीं ये सही जा रहा है, कि मुझे सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे मिल रहे हैं. अभी तुम्हारा दूसरा टॉपिक भी शायद शुरू हुआ रहेगा, तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, एंड देन यू हैव टू डिसाइड स्टूडेंट्स वेदर यू हैव टू गो फॉर इट. लेकिन ये तुम्हारा सिर्फ रेफरेंस बुक है. जेईई मेंस फिजिक्स को क्रैक करने के लिए स्टूडेंट्स यू हैव टू बी स्ट्रांग विद योर एनसीईआरटी सिलेबस, बिकॉज़ द क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी वी कंसीडर. लेकिन स्टेट बोर्ड के अंदर भी स्टूडेंट्स पोर्शन चेंज हो गया है. लिसन केयरफुली, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है, एक साल पहले सिलेबस अलग था, लास्ट ईयर से सिलेबस चेंज हुआ है. यानी तुम्हारी बुक्स में भी बहुत कुछ अच्छा मसाला भरा हुआ है. योर बुक्स आर ऑलमोस्ट एट पार विद एनसीईआरटी. ISC is also almost at par with NCERT. यानी अभी ये गवर्नमेंट ने किया क्या है, they have tried to make all coming at parallel. धीरे धीरे पूरा पैरेलल कर रहे हैं, और मेरे को लग रहा है फ्यू इयर्स के बाद में सारा पूरा एक ही कर रहे हैं. ये पैरेलल जा रहा है, अभी पैरेलल जाना है, सिलेबस को पैरेलल बनाने की कोशिश हो रही है. तो अगर तुम HSC स्टूडेंट्स हो, बोर्ड की बुक देख रहे हो, तो बोर्ड की बुक भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है. टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भी उतनी है, ISC की भी उतनी है. ऑल आर कमिंग एट पार नाउ, सो यू डोंट हैव टू वरी. अगर डिफरेंस भी होगा ना स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट ISC में होगा, ICSE से ISC में जाता है, CBSE NCERT पोर्शन 11-12 में जाता है, या कोई SSC से HSC बोर्ड में जाता है, डोंट टेक एनी टेंशन स्टूडेंट्स. वेरिएशन इन पोर्शन इज सिंपली 5 to 7% बस, उससे बियॉन्ड नहीं है. वेरिएशन सिर्फ 5 से 7% का ही डिफरेंस है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. तो अगर सपोज कोई SSC स्टूडेंट हो भी, उसको भी अगर देखना तो देख सकता है ना ये बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि आगे जाके तो उसको मेंस ही क्रैक करना है, एडवांस क्रैक करना है, या नीट क्रैक करना है. और महाराष्ट्र सीटी में तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा. महाराष्ट्र सीटी में उसकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, वो बिना पढ़े भी महाराष्ट्र सीटी को अच्छी तरह से क्रैक कर लेगा. तो सिर्फ तुम उसको अच्छी तरह से देखो, फिर तुम डिसाइड करना है whether you have to go for it or not. Okay, so please, now I'm coming back to the same. So I told you about this part of y is a y coordinate, x we consider the x coordinate. Now students, can you tell me what exactly this small m stands for? These people, what is happening?
Sujit, Harshada, are you there? Harshada, are you there? Yes, sir. Harshada? Why you're so late in the lectures? No, sir, I rejoined the lecture. Are you sure? Yes, sir. And Sujit, what about you? Sujit, are you there? Yes, sir. You rejoined late or what? No, sir, Huh? I have joined late. Why? Why joining late? हाँ सुजीत, लेट क्यों ज्वाइन किया? कुछ इशू है? नेटवर्क इशू वगैरह है? सर नेट पैक खत्म हो गया था. नेट पैक खत्म हो गया था? तो सब ध्यान रखना चाहिए ना सुजीत, प्लीज स्टडीज के मामले में डोंट डू लाइक दैट. सॉरी सर. टाइम पे इट्स ऑफ नो यूज. फिर ऐसे फिर लेक्चर्स अटेंड करोगे तो कुछ फायदा नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा. फिर एंड ऑफ द जब एग्जाम्स होगी सुजीत, इट्स नॉट ओनली टू यू, आई एम टेलिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स. तुम लेक्चर्स अगर टाइम पे नहीं अटेंड करोगे, तुम अगर मैटर अच्छी तरह से बुक में नहीं लिखोगे, उसको वापस रेडियो रिकॉर्डेड लेक्चर अगर देखना नहीं देखोगे, अपने टाइम के हिसाब से तुम स्टडीज करते रहोगे, फुर्सत जब भी मिलेगी तभी करोगे, लेक्चर्स होगा उसके अगले दिन करोगे, पूरे हफ्ते नहीं करोगे, ये सारे चीजें पाइल अप होती जाएगी. टेक इट फ्रॉम मी. और जब एग्जाम्स होगी और उसमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फेस किसको करना पड़ता है? डोंट यू अंडरस्टैंड कितना फेस करना पड़ता है तुम लोगों को? You have to be answerable to the parents in that case. You have to be answerable to the teachers over here. Why are not scoring? Why unnecessary to come into all the situations initially itself only? तो अपने आप को एक डेवलप करो ना, अपने आप को एक अच्छी तरह से फॉर्म करो कि चलो अभी हमारा 10th में जो भी था खत्म हो गया, फाइन इनफ विद इट, वो था एक अलग. अब ये दूसरा रहा है, एक दूसरा लेवल ऑफ स्टडीज है. 10th यहाँ पे, अभी तुम यहाँ पे पहुंचे हो, ये बहुत बड़ा जंप है स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा जंप है, ये गैप बहुत ही है. यहाँ तक अभी तुम स्टडीज कर रहे हो, ये वाली स्टडीज कर रहे हो, तो उसके लिए उतना डेडिकेशन चाहिए. ओके, सॉरी नहीं, लेकिन जस्ट एक बेसिक लाइन, स्टूडेंट्स डोंट फील बैड इन दैट केस. use your parents hard earned money. Please students, I'm telling you very clearly, money doesn't come easy. Bottom line is use your parents hard earned money first. Okay, now please pay attention further. तो ये y क्या है? ये y coordinate है, ये dependent variable हुआ. x क्या है? x coordinate independent variable हुआ. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये m क्या दिखाता है? What exactly small m represents? The gradient. Gradient, that is slope of the graph. Slope of the graph. Agreed? Okay, gradient is written. Can I say gradient can be written in terms of tan theta also? Agreed? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now suppose if I happen to go for straight line graph, this is theta we consider. So can I say any two values, that means y2 minus y1 upon x2 minus x1. So can I say tan theta is delta y by delta x also? That is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Is this the slope of the graph? Is this becoming the slope of the graph? Yes, sir. Yes, यानी sir. स्लोप का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमेशा ये लेना, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Corresponding value of y matching up with x. Okay, and that ratio is called as the slope of the graph or the gradient, जो यहाँ पे m में लिखा हुआ है. अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारा m पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा होगा, चढ़ान होगा, चढ़ान ऊपर की तरफ जा रहा हो, पॉजिटिव स्लोप की कंसिडर. लेकिन अगर तुम्हारा m नेगेटिव होगा तो उसको होगा ढलान, नीचे की तरफ होगा ऐसे. ये है डिक्लाइनिंग ग्राफ, ये इंक्लाइन ग्राफ. इंक्लाइन ग्राफ पॉजिटिव स्लोप, declining graph negative slope. I repeat, inclining graph positive slope, declining graph negative slope. Horizontal graph, what is the slope? Is it positive or negative? Horizontal. अगर मेरी ग्राफ horizontal बता तो is it positive or negative? जल्दी. Positive. Positive. Anybody else who wants to say, who wants to go against? He's saying it positive. So is it 0? Yes, it's 0. Who gave this answer? What's a good name? So Gauri. Gauri is a wise one. Gauri is wise one. Okay. Students देखो ना, मैंने अभी तो मैंने बोला स्लोप का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? चढ़ान और ढलान, ये दो चीज ही स्लोप होती है. अगर मैंने एक सीधी लाइन बना दी स्टूडेंट्स, तो क्या ये स्लोप है? मैं सीधा चल रहा हूँ भाई, तो स्लोप नहीं है. आई एम नॉट वॉकिंग ऑन अ स्लोप. अगर मेरे सामने सीढ़ियां आ जाती है ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए सीढ़ियां आ जाती है, तो वो क्या हो गया? वो स्लोप हो गया. लेकिन अगर मैं सीधा जाता तो स्लोप है ही नहीं, यानी यहाँ पे स्लोप 0 है.
ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ हॉरिजॉन्टल हुआ जीरो स्लोप, दिस इज पॉजिटिव स्लोप एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर? सी का मतलब क्या? व्हाट डज सी स्टैंड्स फॉर? Constant. कांस्टेंट y इंटरसेप्ट. यानी ये तुम्हारा कौन से एक्सिस, y एक्सिस को कट करता है, ये तुम्हारा y को कट करता है. कहां से कट करता है? अगर सपोज मेरा ये प्लस सी है, उसका मतलब इट्स कटिंग y एक्सिस ऑन द पॉजिटिव साइड. अगर ये मैंने माइनस सी में लिखा है तो मेरा नेगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है. अगर मेरा c जीरो हो गया तो उसका मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है. क्या ये पता चला? एग्रीड. This is C is actually the cutting of the graph to the y called the y axis we consider. अगर प्लस c होगा तो it's cutting the positive y we consider, माइनस होगा तो नेगेटिव होगा. अगर ये जीरो होगा तो ओरिजिन से ही पास होगा. और ये माइंड यू स्टूडेंट्स, तुमने ग्राफ किया है कि नहीं किया है बताओ? हैव यू डन ग्राफ इन द लोअर स्टैंडर्ड्स? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी भी तुमने ये ऑब्जर्व नहीं किया? अभी घर पे बैठ के एक बनाना जरूर. एक ग्राफ बनाओ, ध्यान से सुनना. y is equal to 2x का ग्राफ बनाना, ये तो तुम्हें आता है कि नहीं? फिर y is equal to 2x plus 5 का ग्राफ बनाना एंड y is equal to 2x minus 5 का ग्राफ बनाना. चलो ये तीन ग्राफ बना देना ग्राफ पेपर के ऊपर. ये देखो यहाँ पे मैंने c को जीरो डाल दिया स्टूडेंट्स, यानी ये वाला ग्राफ मेरा ओरिजिन से ही पास होगा. यहाँ पे मैंने +5 दिया है तो मेरा ग्राफ वो +5 यूनिट से ही पास होगा, पॉजिटिव वाइज. -5 दिया है तो -5 से ही पास होगा. ये ट्राई करना. सबका स्लोप सेम है, +2 +2 +2, सारे ग्राफ्स पैरेलल हो जाएंगे. सबका स्लोप, सबका tan थीटा ग्रेडियंट सेम हो. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Try it out at home. And this is what when you're doing the learning process in class 9th and 10th minutes, और उसी टाइम पे तुम्हें सोचना चाहिए. करें अरे यार ये देखो 2x आ रहा था, 2x + 5 आया, 2x - 5 आया, अरे तीनों तीन ग्राफ पैरेलल हुआ. तो वहां पे स्टूडेंट्स थिंक, दे स्टार्ट थिंकिंग एंड दे रिमेंबर अ पैटर्न. स्टूडेंट्स ये सारी स्टडीज के लिए एक पैटर्न तुम्हें क्रिएट करनी होगी. अपने ब्रेन को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करो. सोचो, जब भी होगा सोचना शुरू करो. जितना ज्यादा सोचोगे पढ़ाई के रिलेटेड टू स्टडीज भी कंसिडर, you'll groom better and better and better. Okay, can I erase this part now students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? Yes. Yes, Okay. sir. Okay students. Now suppose if I happen to give you students, listen carefully, okay? एक छोटा सा question है, just try to crack this, okay? Students, I want you to draw graph for degree Fahrenheit versus degree Celsius scale. These are two temperature scale. Okay? मुझे चाहिए ग्राफ किसका? डिग्री फ़ारेनहाइट वर्सेस डिग्री सेल्सियस. चलो ये भी मैंने बता दिया. इसको तुम y एक्सिस पे लेना, इसको तुम x एक्सिस पे लेना. Get me an answer for this. Come on. And don't say that you don't know. You can't say that because you have learned this part in your lower standard. शायद 9th standard में under chapter heat or heat transfer. 110% you will have gone through this also and you know it. तो मुझे सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्केल. इसको y एक्सिस पे लेना, इसको x एक्सिस पे लेना. कैसा टाइप का ग्राफ आएगा ये बताओ?
Yes, anybody, students? Yes. The count is there. Yes, anyone, students? Hope you have understood the question, students. Have you understood the question? Come on, reply fast. Yes, sir. Okay. मैं दूसरे ग्राफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फिर जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सारे स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए ही दे रहा हूँ स्टूडेंट्स. प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट. आई एम नॉट गिविंग यू एनी हाइपरबोला, पैराबोला, साइन कर्व, कोसाइन कर्व, एलिप्स, सर्कल, ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं. आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इसका यानी मैं बता देता हूँ कि ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. तो मैं ड्रॉ करके बताना है. यश हैज पुट फॉरवर्ड. लेकिन यश इसका स्लोप क्या होगा? Yash, what is the slope of this graph? Okay, students, can I solve it for you all, students? मैं solve कर सकता हूँ, students? Can I solve it for you all? Gauri, are you there, Gauri? Yes, sir. Are you getting it, or can I solve it? Sir, just 2 minutes. Okay, fine. Giving you 2 minutes. लेकिन correct answer लेके आना, Gauri. Try your best. So the graph is 2. No, my dear.
Yes, Gauri, can you answer? Sir, I got the slope as 9 by 5. Not sure is it correct. Absolutely correct. Absolutely correct, Gauri. Very good. Anybody else, students? Anybody else? Gauri, let me ask you this. Have you come across this earlier in lower standards? Tell me that first. I'm not speaking about graph and all. Degree Celsius and Fahrenheit. Degree Celsius and Fahrenheit का concept. Have you come across anywhere in the lower standards? Yes, sir, it was there in the 7th class. Yes, 7th class, 8, whatever. Heat में होगा 110% होगा. Students अभी देखो how to go about with this. आज जब भी ऐसे और ये होता क्या मालूम है जब भी तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होता है ना स्टूडेंट्स तो पेपर्स आर बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट्स. देखो मैंने सिखा दिया तुम्हें y इक्वल mx प्लस c सब भर भर के भाषण दे दिया मैंने. y का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, c का मतलब क्या है, m का मतलब एवरीथिंग मैंने बता दिया. चेंज इन द वैल्यू ऑफ y बिकम्स अ फंक्शन, x डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डिपेंड होता है जैसे जैसे x चेंज होगा y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की, ये सब कुछ बता दिया. स्लोप कैसे होता है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, सब कुछ बता दिया. लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आते हैं तो वहां पे स्टूडेंट्स अटकते हैं, बोले ये तो मेरे को सिखाया नहीं. लेकिन ये तुम्हें अंदर से पता होना कि यस वी नो इट. अरे ये कैसे होगा मालूम, हाउ टू गो अबाउट दिस. सिंपल भी है. सपोज अगर मैंने दिया है डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल. चलो अगर मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. स्टूडेंट्स ये कन्वर्जन आना जरूरी है. 0 degree Celsius corresponds to how much? 32 degrees Fahrenheit we consider in that case. Are you getting it? If I happen to go for 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius corresponds to what? 212 Fahrenheit. ये तुम्हारा रिलेशन है. यानी अगर तुम इसके बारे में रिलेशन निकालोगे तो तुम्हारा आंसर क्या था मालूम है? डिग्री सेल्सियस. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. योर फॉर्मूला विल बी डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 is equal to degree Fahrenheit minus 32 by 9. And students, ये equation you must have gone through your lower standard textbooks. अभी ध्यान से देखना, अभी ये कहाँ से मैंने कंक्लूड किया. या तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन, ये दो वैल्यूज लेके तुम एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, या तुम ये ध्यान में रखो और ये वैल्यूज आ सकती है. चलो अभी हमें अगर सपोज फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, क्या ये वैल्यूज मिल सकती है? क्यों नहीं. सेल्सियस को 0 डाल दो स्टूडेंट्स, सेल्सियस को 0 डाल दो. व्हाट इज आंसर ऑफ 0.5? 0. 0 into 9 0. माइनस 32 इधर आ गया तुम्हारा आंसर 32. अभी देखो इसको 100 डाल दो, c को 100 डाल दो. 100/5 25. 25 into 9 225 we consider. Plus sorry, this is 125. 25 9s are we consider this. Yes, are you getting it? 100/5 25 नहीं होगा. 20. Sorry, that is 100/5 we consider is 20. Agreed? Yes, sir. 20 Yes, into 9 will be how much? 180. Agreed? Agreed? 180. Yes, sir. 180 के साथ वो 32 ऐड कर दो, आ गया 212. Yes, sir. Okay, so this is what we consider is, please pay attention. Now suppose अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? सर y is equal to mx plus c. ये तुम्हारा इक्वेशन है. सब्जेक्ट क्या है? y. डिपेंडेंट y, x इंडिपेंडेंट. यानी तुम्हें इसको एक तरफ रखना है, इसको एक तरफ रखना है. तो कैसा आंसर होगा? सर ये होगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट. आ गया तुम्हारा इक्वेशन. देखो इक्वेशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. तुम्हारा देखो y इंटरसेप्ट f आया, स्लोप क्या हुआ? 9/5. अगर मैंने इसका ग्राफ करने के लिए बोला तो सीधा ग्राफ बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री सेल्सियस. अभी मैंने क्या बोला था? स्लोप इज व्हाट? 9/5. व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? 32. यानी तुम्हें यहां से ही पास होगा, ये 32 होगा. स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर? अगर तुम और आगे जाते हो तो अगर इसको तुमने 212 ले लिया तो 32 अगर तुम लेते हो तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आएगा. 212 लेते हो तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आएगा. यानी तुम्हारा ग्राफ ऐसे हो. यही ग्राफ को तुम पीछे लेके जाते हो स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. इज इट कटिंग द एक्स एक्सिस? यस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ना सपोज अगर तुमने डिग्री फ़ारेनहाइट को 0 ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक, डिग्री फ़ारेनहाइट इज 0.
0 minus 32 upon 9 will be minus 32. So degree Celsius upon 5 minus 32 upon 9. Degree Celsius is minus 32 into 5 upon 9. Can I say my answer in degree Celsius will be negative? यानी तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू आया कि नहीं आया? क्या ये ग्राफ समझ में आया सबको? प्लीज, दिस इज योर y इंटरसेप्ट. अगर 100 डिग्री सेल्सियस ले तो देखो वैल्यू देखो ना. अभी देखो x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट 0 लेता हूँ, y कोऑर्डिनेट 32 आया है ना. x कॉमा y जो तुम लोग ने 10th में पढ़ा था. यहाँ पे x 100 लिया है, y क्या आ रहा है 212. अभी देखो यहाँ पे मैंने x को 0 ले, यहाँ पे मैंने x को नेगेटिव में आ रहा है, तो तुम्हारा y क्या बन गया? y 0 बन गया. ये तुम्हारा आंसर नेगेटिव में होगा. सॉल्व करो इसको, नेगेटिव आंसर आएगा दिस पार्ट. अभी तुम बोलोगे सर स्लोप कैसे आता है आपका 9/5? स्लोप निकालते. चलो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो. ये आपका थीटा हो गया, ये ग्रेडियंट हो गया. ध्यान से सुनना. सर ये होगा y1, तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो ये होगी x1. सर ये होगा y2, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी x2. तो स्लोप का मतलब क्या होगा? व्हाट इज स्लोप? y2 minus y1 upon x2 minus x1. What is y2? So 212. What is y1? 32 upon x2 100 minus x1 0. Students, what is the value of 212 minus 32? So what will be 180, है ना? Upon 100 cancel करो. 2 9s are 18 and 2 5s are 10. Is your slope 9 upon 5? Is Yeah. your slope 9 upon 5? मिला तुम्हें यहाँ पे? समझ में आया स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ का क्या कंसेप्ट है? समझ गया. Please students, see one thing, whenever you do studies, do it in a proper manner. एक दफे समझ जाओगे फिर उसका फिर तुम भूलोगे नहीं, तो थोड़ा ध्यान देना जरूरी है. एंड माइंड यू, इन द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ ओनली, जो तुम्हें फील होता है कि बोर्ड के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा है वो तुरंत तुम्हें लिख लेना चाहिए. तुम अगर साइमल्टेनियसली एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर लिखने की एबिलिटी है तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन तुम लिखने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो, सुन नहीं रहे हो मुझे, तो वापस वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी. मैं धनाधन लिख रही हूँ, मैं धनाधन लिख रहा हूँ, लेकिन ये पूरा खाली हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ. So there are certain students who are listening very carefully, and later on they'll say, "Sir, wait for a moment, I'm writing it." That also it's fine. I'll wait for some time, a minute or two in that case. And if you are habituated to write it down both, yes. Yeah. Thirdly, take a screenshot. Would be possible. Fourthly, you can go for recorded lectures and try to rewrite it. लेकिन recorded lectures ज़्यादा अगर आदत बना दी, बाद के lectures को वापस देखने की अगर आदत तुम्हें गिर गई ना स्टूडेंट, तो बहुत बुरी आदत. अभी तुम कंफर्ट जोन में हो, लेक्चर्स कम होंगे शायद, ज्यादा टाइम तुम्हें मिल रहा है, तो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख भी लोगे. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, पोर्शन बढ़ेगा, बैकलॉग भी रहेगा, प्रेजेंट सिलेबस भी रहेगा, एग्जाम्स की तैयारी भी होगी, ये सारा पूरा एक साथ में आने वाला है. During that time, you will not get much time to see recorded lectures. एक recorded lectures को अपने आप पे हावी मत करने दें. रिकॉर्डेड लेक्चर्स कभी देखते हो अगर तुम सपोज मिस हो जाते हो बाय सर्टेन अनफॉर्चुनेट रीजंस, तो तुम उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसके लिए. या दूसरी चीज, तुम्हें कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया और पूरा लेक्चर नहीं देखना, उसी पार्ट को आप फ्रेम करो टाइमिंग के हिसाब से कि शायद पहले 1.5 घंटे में यहाँ पे होगा, ब्राउज करते हो आगे जाओ और फिर उसी पार्ट को खोलो, 15-20 मिनट उसको सुनो और फिर बंद कर दो. रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मतलब वो होता है स्टूडेंट्स, ना कि तुमने लेक्चर अटेंड किया बाद में फुर्सत से वापस ऐसा पाँव फैला के ऐसे लेके साथ में पॉपकॉर्न लेके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहा हूँ. मामा, प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, ओके? बी अलर्ट एंड अटेंटिव इन द लाइव सेशंस rather than into your recorded part of it. Can I erase this part? Excuse me. Yes. Yeah. Sir, can you just explain that degree Celsius by 5 is equal to minus 32 by 9? Why did we take that? This is actually a relation, my dear. This is a relation with you consider with respect to conversion. Conversion factor we consider. Degree Celsius upon 5 is equal to F minus 32 by 9. Considering with degree Celsius, Fahrenheit scale and Kelvin scale.
If I happen to go for a common relation in these, this is a mathematical relation we can consider for both a mathematical geometrical way of appearance. तुम ग्राफ ही बना दो ना, ये देखो ना, अगर suppose when I start plotting graph, ये formula कहाँ से आता है मालूम है गौरी? This formula you get it from where? By plotting graph. This is not there at all. Hello, Gauri. Okay, sir. This is not there at all. Where exactly, what exactly a student will have it, or what exactly a person who's measuring it will have the values, x coordinate, y coordinate. Are you getting it? Yes, sir. Then you try to plot the graph. When you plot the graph, you'll get an equation. आया ना तुम्हारा equation, देखो इसी को rearrange करो, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes. It's like that. But Sir, I told you when I told you there are two ways of approach. One student will remember this part of it and try to get this, means try to understand, or will remember this and go ahead with it. अगर तुमने ये किया तो तुम्हें ग्राफ मिलेगा, ग्राफ से तुम्हें ये मिलेगा, या कोई स्टूडेंट्स है जो डायरेक्टली ये फॉर्मूला मालूम है उन्हें. Are you yes. getting it? They'll plot the graph. Okay, Gauri? Yes, sir, but I was asking about that other part which is there, minus 32 by 9, that part. That one I didn't get. Like degree Celsius is equal to negative. Oh, I'm sorry. Okay, I'll solve this part and I'll see. Is this question clear with, is this part clear with you? Yes, sir. Okay, now suppose if I consider f is equal to 9 by 5 degree, can I take 32 on the other side? Yes, sir. Is equal to 9. Agreed? Yes, sir. Now suppose if I happen to consider in this case, can I take 9 on the other side? Yes, sir. So f minus 32 by 9 is equal to degree Celsius upon 5. हो गया? Yes, sir. Clear already now? Yes, sir. Visible maths. No, sir, actually, like above this thing, you wrote degree Celsius is equal to negative, then like in the equation f was not there, so I was confused in that. Okay, means you mean to say this value? Yes, sir, this one. हाँ तो ये तो तुम्हें मिलेगा ना, solve करो ना. चलो इसको solve करो, minus 30 into 5 by 9. What answer you getting it? No, sir, not about that. I was just saying that in the first equation, it's written degree Fahrenheit minus 32 by 9. So while solving it, the f value was not there. Like we didn't put f, we just wrote minus 32 by 9. So I was confused about that. No, I took f as 0, my dear. I took degree Fahrenheit. If I happen to consider, if in case if I take 0, what is the value of degree Celsius? Now, if I take degree Celsius as 0, when I said about this, I took degree Celsius as 0. I said it first. Look at the recorded. If I take Celsius as 0, 0 upon 5 will be 0. 0 into 9 will be 0. So f will be 32. That's how I'm going to get 32. So I'll get 0, 32. Okay, sir. Very clear? Yes, sir. Can I erase? Yes, sir. Okay, students. The next part of this. Now, suppose everybody knows force equation, students. You all know what exactly force equation is, students? Can you tell, anybody can tell me what is exactly force equation is? So force is equal to mass into acceleration. Absolutely correct. Students, what about, it's only Gauri is the one who's answering, or what over here? What about rest of you all? Force is equal to mass into acceleration, students, okay? ये तुम्हें सबको पता है, force equation सबने पढ़ा हुआ है. मुझे students सिर्फ ये करना है, I want you to represent graphs. Okay, I wanted to represent graphically about force, mass, and acceleration, students. Lekin, in the first case, I wanted to plot a graph of force and mass. Sorry, force and acceleration. First graph I wanted in force and acceleration. Okay, force and acceleration I wanted. Second
के अंदर I want a graph with respect to force and mass. And third graph I wanted between mass and acceleration. अभी देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने किसको कहाँ पे लेना है वो नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ मैं. I've given you two variables. Hello, I've given you two variables. I've given you two variables. These are two physical quantities. I'll rather than saying variables, I'll consider two physical quantities. उसमें एक फंक्शन है और एक वेरिएबल है. ध्यान से सुना, एक फंक्शन है और एक वेरिएबल है, यानी एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, फंक्शन वाई एक्सिस पे होगा. क्या इतना क्लियर हुआ तुम्हें? फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को? Yes, sir. ये सारे ध्यान से सुना अगेन, F is equal to m into a, ये तीनों physical quantities है which can be measured in physics, are called as measurable physical quantities. We can use an instrument in order to measure it. I can simply consider in that case. लेकिन if I happen to speak about FNA, FNM, MNA, so these are now variables, physical quantities given to you, but one is a function, other one we consider as a variable. That means one is a dependent quantity and other one is an independent quantity. अगले जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने क्लियरली बताया था डिग्री फ़ारेनहाइट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिग्री सेल्सियस वाज इंडिपेंडेंट. वहां पे मैंने डिफाइन किया था कि फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे लो, डिग्री सेल्सियस को x एक्सिस पे लो. लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ किसको x एक्सिस पे लेना है, किसको y एक्सिस पे लेना है. तुम अपने आप से डिसाइड करो किसको कहाँ पे जाना है. डिपेंडेंट कौन होगा, इंडिपेंडेंट कौन होगा, क्योंकि सबने पढ़ा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सबको पता है फोर्स इक्वेशन. भले वो एसएससी का स्टूडेंट हो, आईसीएससी का स्टूडेंट हो, आईजीसीएसई का स्टूडेंट हो, any one of you all, everybody knows this. So you can't say, "Okay, sir, we don't know about it." Now I want you to plot three graphs. The two physical quantities are FNA, FNM, MNA. I want you to plot the graph properly. Is the question clear with everyone? Students, is the question clear? Yes, sir. Clear, sir. चलो बोलो. Anyone?
Sir, done. Done. Okay. Who's this? Rakshit, you? Rakshit? Yes. Okay, चलो बोलो. पहले केस में tell me which is dependent and which is independent and why. Sir, force is independent and acceleration is independent. दोनों Because independent. दोनों independent. no, sir, sorry, acceleration is dependent. Acceleration. तो उसको कहाँ पे रखूँ मैं? Y-axis. Absolutely correct. And force is independent. Students, see one thing. मैंने जानबूझ के दिया to know किसको कहाँ पे लेना है. और ये तुम बता सकते हो. अभी बताओ रक्षित कैसे पता चला तुम्हें? कैसे पता चला कि acceleration is in the dependent quantity and force is independent? How do you come to that conclusion? Sir, I thought that if force was changed, then acceleration also gets changed. Okay. अभी देखो students, see one thing. ये सारे को explanation करने के लिए take a simple example. Please pay attention. I'm trying to go for a simple example with respect to a block when placed onto a surface. Please students carefully listen carefully. Okay, this is a block. Everybody be with me, please. Stop it. Okay, now think over here. Now this is a block and this is a pulley. Okay, एक string बांधा हुआ है मैंने यहाँ पे और वो string जा रही है around a fixed pulley. Okay, corner पे fixed pulley है और यहाँ पे मैंने कुछ weights दिए हुए हैं. Okay, ये तुम्हारे suspended weights है. यहाँ एक pan दिया हुआ मैंने और उसके अंदर मैं weights डाल रहा हूँ. अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. ये जो ब्लॉक है उसका खुद का मास है में, उसका वेट नीचे की तरफ जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा. स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स होगा, पुलिंग फोर्स भी होगा. उसको पुल कौन कर रहा है? सर यहाँ पे आप वेट डालोगे तो वो पुल करेगा. ये mg है जो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा. एंड मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, आई सेड इट फोर्स एंड एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे क्या है, जब भी फोर्स और एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हो ना स्टूडेंट्स ग्राफ के लिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हारा मास कांस्टेंट रहेगा, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है. ये चीजें ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. फिजिक्स में whenever you somebody gives you a mathematical formula in physics, that means if you have learned so many formulas, a simple example, तुम लोग ने resistance का formula पढ़ा है, R is equal to rho L by, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स? बताओ सब, everybody. Yes, sir. Yes, sir. Resistance, length, area of cross section, resistivity. तो देखो कितने सारे इसमें physical quantities हैं. 4 है. Resistance एक, resistivity दूसरा, length तीसरा, area चौथा. Students, whenever you have 4 physical quantities in physics, yeah, 3 or 2, or 3, yeah, 4, what exactly have to do? You have to keep one constant and play around with the other. ये ध्यान में रखना, physics का ये rule है. कभी भी हम equations को देखते हैं तो किसी एक को constant रखो और बाकी एक जो dependent है उसको 2 के साथ में खेलना शुरू करो. अगर मैं resistivity को constant रखूंगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो मैं बोलूंगा इसको y deals with ln a. अगर सपोज मैंने L को कांस्टेंट रखा तो it deals with rho Na. अगर मैं R को कांस्टेंट रखूंगा तो it is a relation between rho ln a. ये रूल सारे पूरे फिजिक्स में अप्लाई होता है जितने भी चैप्टर्स है सारों में. यानी स्टूडेंट्स एक दिमाग में ये ध्यान में रखना कि जब भी इक्वेशन आता है तुम्हारे सामने फिजिक्स में, and if there are so many physical quantities into it, in order to get a correct arrangement or the relation, keep one physical quantity constant. So now I get rid of the mass constant. So now see, mass of the block is constant. I'm not increasing the mass. इसके ऊपर मैंने कोई दूसरा मास तो नहीं रखा है. Come back to the experiment. इसके ऊपर मैंने दूसरा मास तो नहीं रखा है. लेकिन what should I do? If I say that if I go on adding more weights on the inside the pan, as I go on increasing weight, so can I say my applied force also will increase? What happens to the acceleration possessed by the block? Will also increase. So as I go on increasing force, will the acceleration of the block will increase? Yes, this is origin, keeping mass constant. What kind of a graph? Straight line graph passing through origin. Yes, sir. समझ में आया ये? यानी स्टूडेंट्स ग्राफ को समझने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंटेशन में जाना पड़ता है. That is why students, whenever you all have done physics, and whenever you have done your experiments, wherever you have done experiments in your labs, or some teachers must have made you do,
They have surely made you to perform experiment, and they must have told you to draw a graph on the graph paper. See how to compare that what you are learning it is correct or incorrect. चलो students, न्यूटन ने थोप दिया तुम्हारे ऊपर. सर आइजैक न्यूटन ने डाल दिया तुम्हारे के फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. टीचरों ने तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में बता दिया फादर इज इक्वल टू मा, फादर इज इक्वल टू मा, फादर एफ इज इक्वल में रट्टा मार दिया, वही वॉमिट किया, हक करके निकाल दिया आंसर शीट पे. लेकिन एक्चुअली ये है क्या? ये तुम्हारा थियोरेटिकल नॉलेज हुआ. इसको तुम कैसे करोगे? सर हम एक्सपेरिमेंटेशन से हम प्रूव करेंगे. अभी एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, लेकिन ये प्रूफ सही है ये गलत है कैसे पता चलेगा? ग्राफ ड्रॉ करो. अरे हाँ सर, रेशियो कांस्टेंट वाला है, तो ये मेरा स्लोप हो गया. f by a is a constant, m is a slope, so m is a constant, m is the slope of the graph. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Students, is it clear to all of you all, or just I'm speaking to walls? Am I speaking to walls? No, sir. Yeah. Please, all of you all. Zia, are you there? Zia, are you getting it? Zia, Yash, Yes. Yes, sir. Yash, Rajesh, Umer. Yes, sir. Please do reply. Shubham, Shreya. Shubham, Shreya. Yes, sir, getting. Okay. Shreya, what about you? Shrina, what about you? Yes, sir. So low, yes, sir. So low, yes, sir. मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे मॉम एंड डैड तुम्हारे राइट और लेफ्ट पे बैठे लेक्चर्स में, और हेडफोन्स हो तो निकाल दे. हेडफोन्स हो तो निकाल दे एंड लेट द पेरेंट्स हियर व्हाट एग्जैक्टली आई एम स्पीकिंग इन. है ना? तो ऐसा मत करो. एक तो आप इतना चिल्लाते हो, ऊपर से और आवाज आ जाएगी हमारे घर के अंदर, पापा मम्मी भाग के आ जाएंगे हमारे पास, क्या हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, समझ के करोगे तो स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए अच्छा है. आई हैव नथिंग टू डू विद इट. ओके, माय जॉब इज टू सी टू इट दैट आई ट्राई माय बेस्ट टू सी टू इट दैट फिजिक्स बिकम्स इजी विद योर. ओके, दैट इज माय जॉब. कि जब भी तुम कुछ करने बैठो अपने आप से भी, तो तुम्हें फील होना चाहिए कि नहीं हमें आता है. ओके, अभी दूसरे वाला. यस, आंसर. ही हैज डन दिस. आंसर फॉर द सेकंड वन. हु वाज आंसरिंग? आई फॉरगॉट हिज नेम. ऋषित, क्या रशित? हु इज आंसरिंग? Rakshit, sir. यस रक्षित, वेरी सॉरी. चलो अभी सेकंड वाला बोलो. इसका क्या बताया तुमने? इसका कैसे ग्राफ होगा? कौन कहाँ पे होगा? Sir, इसमें भी same for the same for force. Force Hmm. would be on x-axis and mass would be on the y-axis. एक पंच देना चाहिए, एक पंच देना चाहिए तेरे को. सॉरी, सॉरी प्लीज. ओके, तेरे को इतना पता नहीं चला. मास डिपेंड्स ऑन टू फोर्स. यानी रक्षित तू क्या सोच रहा है मालूम है? फोर्स बढ़ाएगा तो मास बढ़ेगा. फोर्स No. बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, कि मास चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा. कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? चलो फॉरगेट अबाउट ये ब्लॉक का छोड़ देते हैं. रक्षित ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये तेरी गाड़ी है. ओके, इटालियन फियाट, हम इटालियन फियाट लेते हैं. प्लीज, ये रक्षित की गाड़ी है. इटालियन फियाट हम लोग लेते हैं, और वो रक्षित चला रहा है. ओके, रक्षित चला रहा है. ओके, हम अभी सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ ले रहे हैं. फोर्स एंड मास का मतलब यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखा. यानी रक्षित तेरी जो गाड़ी है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही चाहिए मुझे थ्रू आउट द जर्नी. भले वो 0.1 पे है, 0.2 पे हो, 0.3 पे हो, 0.4, 0.5, मुझे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही चाहिए. ओके, अभी सपोज तू पहले बैठा है. ओके रक्षित, फर्स्ट यू आर सिटिंग, तो कैन आई से देयर इज सम मास inside yourself is some mass. So can I say the engine will exert some force, your car will go in the forward direction. Yani you are having some mass, engine will exert some force, the acceleration will remain constant. Rakshit, getting it? Yes, sir. Now Rakshit, along with you, your friend is sitting over here. Along with you, your friend sits over here. So has the mass increased? Has the Yes. mass increased? So now to keep the acceleration constant, should the force exerted by the engine also should increase? Yes, sir. Of course. अगर सपोज और एक बंदा बैठ जाता है तो क्या होगा? यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मास को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, फोर्स को लेके वाई एक्सिस पे, कीपिंग एक्सेलरेशन कांस्टेंट. स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? यानी यहाँ पे अगर मास बढ़ता है स्टूडेंट्स, देन द करस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड फोर्स should also increase.
to keep acceleration constant. तो ये भी straight line graph देखो, लेकिन F कहाँ पे चला गया? Y axis. Mass कहाँ पे आया? X axis. That means force depends on mass over here, but over here acceleration depends on force. See the fun in this equation. और ये सब लोग ने पढ़ा है 9th में, लेकिन Yes. किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यानी तुमने जो कुछ भी पढ़ा है सिर्फ मेमोराइज किया है स्टूडेंट्स। इसलिए तुम्हें मालूम है, तुम्हें 11th और 12th स्टूडेंट्स को साइंस क्यों थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, टफ लगता है, बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि तुमने लोअर स्टैंडर्ड में उतना सोचा नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। सो नाउ यू आर स्टार्टेड थिंकिंग, and that is good sign. That is what I'm telling you. Try to read your books in 10-15 days. एक पैटर्न क्रिएट कर दो स्टूडेंट्स। 15 दिन के अंदर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या पीसीएम या मैथ्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पीसीबी। 15 दिन का एक टारगेट रखो, एक अपना टाइम टेबल अरेंज करो, 10 स्टैंडर्ड की बुक्स को एकदम क्लियर करो। उसके अंदर फिर देखो तुम्हारा फिजिक्स कितना सेल होता है आगे, तुम कैसे आगे बढ़ते हो, फटाफट आगे बढ़ोगे फिर, ये तुम्हें सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। ओके, ये क्लियर हुआ एवरीवन? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? सेकंड पार्ट ऑफ द ग्राफ? Yes. Yes. ओके, चलो थर्ड पार्ट, मास एंड एक्सेलरेशन। रक्षित, कम ऑन फास्ट आंसर इसके लिए। Sir, I am not sure about this one. Okay, acceleration on x-axis. Ian has given the answer, and mass on y-axis. Again, how can be? Who's this answering? Ian, मुझे ये बता, mass dependent कैसे होगा, my dear? Mass कैसे dependent होगा? Dependent quantities are on y-axis, independent on x-axis. Mass कैसे depend होगा? अगर suppose मैं रक्षित के हिसाब से जाऊं, यानी फोर्स बढ़ता रहेगा तो क्या मास बढ़ता रहेगा? अंदर तो एक ही इंसान था, अंदर तो पहले रक्षित ही था। वही अगर गाड़ी का फोर्स बढ़ा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ना, मास तो उतना ही है। तुम मास को चेंज करो ना। दैट इज व्हाई आई वेंट फोर्स ओवर हियर एंड मास ओवर हियर। नाउ व्हेन आई गो ओवर हियर फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ इट, x and y students, your acceleration will be on y axis, mass will be on x axis. Dependent variable is acceleration, independent is mass. यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? फोर्स इज कांस्टेंट इन दिस केस। सेम एग्जांपल, चलो अभी हम लेते हैं फोर्स कांस्टेंट। यानी स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये जो गाड़ी है वो एक कांस्टेंट फोर्स एक्सर्ट करती है। गाड़ी कैसे मूव होती है स्टूडेंट्स? पिस्टन आगे पीछे होता है, गाड़ी के अंदर पिस्टन होता है। जैसे पेट्रोल का वेपर्स बर्न होते हैं, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा कंसेप्ट, पेट्रोल का वेपर्स बर्न होते हैं तो एक छोटा सा अंदर गैस का वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, उससे एक पिस्टन बाहर की तरफ आता है, वो एक रॉड को मूव करता है, वो रॉड व्हील को मूव करता है, और गाड़ी आगे बढ़ती है। एक सिंपल कंसेप्ट है मोशन ऑफ कार का। तो अगर तुम इसको देखोगे तो देखो ध्यान से देखना, मेरा फोर्स कांस्टेंट है, यानी पिस्टन को जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है। देखो लुक एट माय हैंड, सपोज ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ना ही फोर्स बढ़ रहा है ना ही फोर्स कम हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स है। अभी मुझे एक्सेलरेशन और मास के हिसाब से, तो अगर पहले सिर्फ रक्षित बैठा है, फोर्स कांस्टेंट है, पहले रक्षित बैठा है यहाँ पे, तो अंदर इसका गाड़ी का एक्सेलरेशन ए होगा। लेकिन रक्षित के साथ में और एक बंदा बैठा, फोर्स कांस्टेंट है, तो क्या एक्सेलरेशन बढ़ेगा या एक्सेलरेशन कम होगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फिर मास विल हो इंक्रीज, जाएगा। कम हो जाएगा, बिकॉज look over here, force is mass into acceleration. Students, acceleration is inversely proportional to mass. Whenever you get inverse variation, your graph will be what? Hyperbola. Yani tumhara graph will be in this case. Suppose if there is zero mass, the car is going with maximum acceleration. But as you go, what happens? The acceleration will go on decreasing. So what exactly consider is, as mass goes on increasing, the acceleration of the body goes on decreasing. What kind of a graph is this we call? This is hyperbola, inverse variation. देखो मास बढ़ रहा है, देखो पहले ये मास अगर मैं लेता हूं तो ये करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन हुआ। अगर मास बढ़ा, दो इंसान बैठे हैं, तो एक्सेलरेशन कम होगा ना गाड़ी का, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स थोड़ी बढ़ रहा है। जब पिस्टन का जो फोर्स है गाड़ी के ऊपर वो नहीं बढ़ रहा, फोर्स इज कांस्टेंट, मास और अभी 3 इंसान बैठ गए तो एक्सेलरेशन और कम होगा। जैसे जैसे ज्यादा तुम गाड़ी को लोड करोगे, फोर्स उतना ही जा रहा है, एक्सेलरेशन कम होता रहेगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All the students inside the group, is it clear to all of you all students? Yes, Yes, sir. Okay, can I erase this part now? Excuse me, sir. Yes, sir. Be excused. So why can't be the third graph be a declining one? Declining, it's declining now. As mass Straight line declining graph, sir. my dear, straight line, what is an equation of a straight line, Gauri? What is an equation of straight line? Y is equal to mx plus c. That means ratio is a constant, na? This is ratio, this is product is a constant. है ना? ये y, अगर मैंने y inversely proportional to x लिया, तो ये product हो गया. अगर product constant आता है, तो वो hyperbola हो जाएगा. Ratio constant होता है, तो वो straight line आ जाएगा. समझ में आ रहा है difference? Difference समझ में आया? Agreed? If I take ratio constant, it will be a straight line graph. If I take product constant, it will be a hyperbolic graph. Yes, sir. Okay, inverse variation wale graph. See, she raised a good question. How to decide? तो ये होगा देखा ना, mass and mass. मैंने यहाँ पे acceleration inversely proportional to mass. Is this clear, students? Can I erase it? Yes, sir. Okay. Which of the topic is going on in physics, students, with you all? Students, which topic? Vectors. Sir, vectors. My dear, for the first two, whatever the constant is, that's the slope. The third variable is the slope. Who raised that post? यश, पहले तो ग्राफ के लिए जो तूने बाहर एक्स एक्सिस पे लिया ना, उसके अलावा जो बचा हुआ टर्म है वो स्लोप बन जाता है. एग्रीड? Yes, sir. Let's move ahead now. Now suppose if I give you the last question on graph and then we'll move for the derivatives part of it, okay? Students, now please pay attention. Suppose if I happen to give you a graph of x-axis, y-axis, origin, displacement versus time. Velocity versus time. Chalo. I'm giving you velocity versus time. Okay. And my graph is this. Let us say at 0 seconds, the body is having initial velocity which is not equal to 0. At time t, seconds, the body attains final velocity v. Please, the graph is velocity versus time. Velocity in meter per second, time is in second. ये graph पता है? Velocity versus time. U is not equal to 0 and at time t it has a velocity v. मेरा question here, students, what will be the area under the graph? So displacement. And give me the formula for that. That's my first question. And second, what is the slope of the graph? And give me the formula for it. So for the first one, the formula would be area of the triangle plus area of rectangle. That is half into base into height plus length into breadth. And then for the second one, My dear, I wanted to give you the formula. I wanted to give you the area under graph of formula. You're getting displacement, but what is the formula?
of the displacement. And second slope of the graph is what? Which physical quantity will give me the slope? For displacement. Pardon? For displacement, we'll use V minus U, no? For displacement, don't ask me. You have to solve it and tell me, my dear. Akshay, तुम Okay, मुझे sir. पूछ रहा है, तुम मुझे मत पूछना. और ये मैंने कहाँ से उठा के पूछा? मेरे को बताओ स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे किया तुम लोगों ने? किया कि नहीं किया? सारों ने किया 9th स्टैंडर्ड में. लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एंड आई हैव टोल्ड यू आल्सो एरिया का मतलब क्या, स्लोप का मतलब क्या. Which physical quantity you should get it over here, and secondly, I want a mathematical relation for that. Gauri, she said it, the physical quantity over here is displacement. Lekin I want the formula for it. And what is the slope of the graph? Give me the variable of this and give me the formula. Khatam ho gayi baat. So for the first one, it would be like the half into base into height plus length into breadth now. Don't tell me that. Don't tell me that. You have to solve and get me the answer. I don't know anything, Gauri. You are asking me, Gauri, my dear. तुम मुझे पूछ रहे हो ऐसा करे क्या? तुम्हें करना है, मुझे नहीं पता. At present I'm your Hindi teacher. Okay, I don't know physics. चलो. Okay, अभी करो. Okay, Gauri. Okay, Gauri. Yes. Okay. Don't ask me. Just try to get me the answer, and you should. All of you all should know it. सबको ये आंसर आना चाहिए. The strength is 39. All 39 students should know this how to get. कोई बोल नहीं सकता कि सर मुझे नहीं आता. ये बोल ही नहीं सकता कोई. And this should go loud and clear at home. Remove your headphones and let the parents also hear it. Everybody should know this. Yes, anybody? Excuse me, sir. Be excused. So for the first one, the formula would be half into sum of the parallel sides. Mama, Gauri, you are answering. Yes, sir. Gauri, I'm going to complain to my mom that you are answering me and not. No, sir. I'm telling that. No. तुम लोग मेरे बारे में अपने पेरेंट्स को कंप्लेन कर सकते हो. मैं भी तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर सकता हूँ कि ये मुझे रुलाती है क्लासरूम. No, sir. It would be half. No, fine, Gauri, my dear. What's the one thing, Gauri? You are absolutely going correct. तू मुझे क्यों पूछ रही है? तू कुछ solve करके मुझे एक equation बना के देना. मेरा question ये है. Did you understand? You told me area under the graph is displacement. I agreed with that. Yes. Then you said it's so and so and so and so. So you try to use that and try to get a mathematical formula for displacement. That's my question to you is. तू वापस घूम फिर के उधर ही आती है. यानी तुम्हें जो रुलाने पे ऊपर बैठी है कि नहीं सर को आज रुलाते भेजूंगी. Gauri, okay, get the answer. Doesn't matter. So, but Anybody like, else? there are no points on the graph or something like that to get in. See. This is what I wanted from you all. Like, that's what I want to see. Who's a good one? Who's a wise one? And this everybody knows it. सबको पता है ये. लेकिन अभी ध्यान में नहीं आ रहा है. Students मैं क्या बताना चाहता हूँ मालूम है? I don't know about it. शायद कोई होगा जिसको आता भी होगा, लेकिन वो बोल नहीं रहा है. Please ऐसे मत करो. Try to give answers. लेकिन अगर नहीं आता है तो somewhere ये एक थोड़ा सा वरी है. Students ध्यान से सुनना भी. What am I trying to say?
ये बॉटम लाइन क्या हो रहा है मालूम है? जो कुछ भी तुमने 9th में पढ़ा है अभी में 11th 9th वाज 2020 या 2019 2019 2020 2021 डिग्री 2019 में तुम लोग ने पढ़ा हुआ है और 2021 में पूछ रहा हूँ। सोचो आज जो तुम 2021 में पढ़ रहे हो क्या वो 21 23 के लिए याद रहेगा? समझ रहे हो? आई डोंट नो इफ पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी, दिस इज व्हाट इज स्टडीज इज अबाउट। क्योंकि 2 साल का एफर्ट है, 2.5 साल तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से करना है। यू कांट फॉरगेट थिंग्स। मेमोराइज किया होगा तो भूल जाओगे, कंसेप्चुअली समझ के करोगे तो नहीं भूलोगे। अभी हम जाते हैं एरिया अंडर द ग्राफ। गौरी ने बहुत ही सही बोला था, सर एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ y इंटू एक्स। स्टूडेंट्स ये मैंने बताया था, एरिया का मतलब क्या? y इंटू एक्स को कंसिडर करना है। मैंने क्या बोला था? यूनिट को देखो, y के ऊपर क्या है सर? वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड में होगा। टाइम किसमें है सर? सेकंड में है, तो कैंसिल होगा तो मेरा आंसर क्या होगा? मीटर। यानी स्टूडेंट्स ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो मेरा आंसर डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। लेकिन उसका मुझे इक्वेशन चाहिए। तो व्हाट इज एरिया अंडर ग्राफ? सर एरिया अंडर द ग्राफ इज, कैन आई से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये तुम्हारा O, U, इसको मैं लेता हूँ P, इसको मैं लेता हूँ Q। तो कहने से ये मेरा ट्रेपीजियम आया, देखो ना ट्रेपीजियम आया। ये O, ये U, ये P, ये Q, ये P की तरफ ये कौन सा वैल्यू आ रहा है? B दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ये T दिखाई दे रहा है। तो एरिया अंडर द ग्राफ ये हो जाएगा। ये ग्राफ तुम्हारा बना है, दीज आर द टू पैरेलल साइड्स, और ये परपेंडिकुलर हाइट हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये ट्रेपीजियम हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट्स एरिया अंडर ग्राफ? सो एरिया अंडर ग्राफ यानी तुम्हें तो डिस्प्लेसमेंट मिला है। व्हाट इज एरिया अंडर ग्राफ? सो एरिया अंडर ग्राफ इज हाफ, ध्यान से सुनना, हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स यानी कौन सी साइड्स है सर? ये एक साइड पैरेलल है और ये एक साइड पैरेलल है। सर ये साइड तो मुझे यू दिखा रहा है, अरे हाँ यार ये तो यू आएगा यहाँ पे, प्लस ये क्या दिखा रहा है सर? ये तो दिखा रहा है वी, अरे सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया, इनटू हाइट। हाइट क्या है? ये है, हाइट क्या है सर? ये तो टी दिखा रहा है मुझे। तो कहना से डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, u प्लस v बाई 2। ये तुम्हारा इक्वेशन हुआ। तो गौरी को ये इक्वेशन बोलना था और इसको और मॉडिफाई करे। डू एवरीबॉडी नो द फॉर्मूला ऑफ v इज u प्लस 80? सबको पता है ये? सबको पता है कि नहीं पता? कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस v बैक ओवर हियर? Yes, sir. स्टूडेंट्स कैन आई सब्स्टिट्यूट v बैक ओवर हियर? ये x एक्सिस है। So what exactly if I'm getting it? Solve it. S is equal to half u plus v की जगह पे कहना रहता है u plus 80 into t. Agreed? Agreed? Yes, sir. तो ये देखो s is equal to half. What is u plus u? 2u into t plus 80 square. So what is my answer? ut plus half 80 square. Friends, didn't you get the second equation of motion? Yes. मिला कि नहीं मिला? तो क्या मैंने रॉकेट साइंस पूछा था तुम्हें? No, sir. ये सबने 9th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. तो ये मैं बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की जो तुम 9th में पढ़ रहे हो वो आज मैंने तुम्हें पूछा 2 साल के बाद में। यही मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को कि जो आज तुम पढ़ोगे वो तुम्हें 2 साल के बाद तक याद रखना है। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान में रखो। तो पढ़ाई का एक पैटर्न क्रिएट करो स्टूडेंट्स, एक फॉलो करो पैटर्न, और उस पैटर्न को कंसिस्टेंसी में रखो। उतार चढ़ाव आते रहेंगे स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स में भी मार्क्स में भी ऊपर नीचे होता रहेगा। नथिंग टू वरी अबाउट इट, जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ध्यान में रखना, अगर हो सके उतना कंसिस्टेंट रहने की ट्राई करना। जितना तुम मार्क्स के अंदर कंसिस्टेंट रहोगे, अगर 300 मार्क का पेपर है, 300 मार्क का पेपर अगर सपोज तुम्हें 150 भी मिलता है या 200 भी मिलता है तो नथिंग टू वरी अबाउट इट स्टूडेंट्स, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे जाके ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन वो 150 या 200 उसको कुछ एग्जाम्स के लिए कंसिस्टेंट रखो ना। तुम 200 लेके आते हो फिर दूसरी एग्जाम में ड्रॉप होके 160 आता है और तीसरी एग्जाम में 280 चले जाते हो, वो नहीं होना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो और उस कंसिस्टेंसी को 2 एग्जाम के बाद में उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके आ जाओ। दिस इज हाउ वी कंसिडर। इज दैट क्लियर?
So now you have got it. तो ये तुम्हारी इक्वेशन क्या होगा सर? S is equal to UT. इक्वेशन क्या होगा? UT plus half AT square. What about slope of the graph, students? तो slope क्या होगा? What is slope of the graph? Anybody? So slope of the graph will be what we consider ratio. Product is this. Slope is what? Ratio. What is y by x? What is y by x? Sir, velocity is in meter per second. Time is in second. क्या आंसर मिला? मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला कि नहीं मिला? तो स्लोप क्या मिला? सर स्लोप मिला एक्सेलरेशन. व्हाट इज स्लोप? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन. स्लोप का मतलब क्या है? सर स्लोप का फॉर्मूला होगा m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. क्या ये फॉर्मूला क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला क्लियर है स्लोप का? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी n का मतलब a आया. y2 देखो. हाँ सर ये मेरी वैल्यू y2 है. ये मेरी वैल्यू y1 है. ये y1 की जगह पे यहाँ पे मेरी x1 0 हो जाएगी. ये मेरी x2 t है. अभी सब्स्टिट्यूट करो. y2 का मतलब क्या लिखूंगा मैं? v. y1 का मतलब u. x2 का मतलब t. x1 का मतलब 0. What's my answer? What's my answer, students? Acceleration is rate of change of velocity. क्या ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? है ना? और ये s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये मीटर में आएगा तुम्हारा. क्या अभी क्लियर हुआ? एरिया अंडर द ग्राफ एंड स्लोप का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Is this clear with all of you all? Yes, sir. Yes, sir. I'm not asking two of them students, all the students who are into the group. Now see the strength. जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, there are certain silly characters going away from the lectures. 37 यानी 36 students, 4 students are out. 40 था, 41. पहले पहले कुछ 42, 43 थे. उसका 41 हुआ, उसका 37 हुआ. I don't know what his parents are up to. And then when the kids doesn't score, the blame game start. हमें ऑनलाइन समझ में नहीं आता है ना? जब भी मार्क्स कम होते हैं तो दवे की वजह से, ऐसा दवे की वजह से, सामने दवे से, उसकी वजह से, उसने बरोबर नहीं पढ़ा है, हाथ भी आता है, पाँव भी सामने, इट्स बिकॉज ऑफ हिम वी आर नॉट एबल टू स्कोर. Please, as an advice to all the parents and all the kids, please be sincere with your studies. Okay? एक रिलीजियसली तुम करोगे ना अपना, जैसे सारे हमारे टीचर्स रिलीजियसली काम कर रहे हैं, all seniors of mine. So even you all do, students, together we can work really properly. अभी वापस देखो ना, डिसीजन खुलने वाले थे स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्कूल्स वगैरह वापस कॉल ऑफ कर दिया. कॉल ऑफ इन द सेंस उसकी वापस मीटिंग हो रही है, क्योंकि कोविड वॉरियर्स बोलते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि हम कोप अप नहीं कर सकेंगे. अगर बाई चांस ये बूम हो गया वापस और बच्चों में बूम हो गया, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो हम कोप अप नहीं कर सकेंगे. वॉरियर्स का मतलब ये जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जितने उन्होंने ना बोला, तो उनका वापस एक अभी मीटिंग डिसीजन हुआ. So students, please don't try to blame the online part of it. And this is the best mode. मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट मोड हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कौन कम्युनिकेट कर रहा है? 3 या 4 कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाकी सारे तो सो रहे हैं. कि कोई तो पैर फैला के अपने डेस्क के ऊपर आराम से बैठा होगा और लेक्चर सुन रहा है, सामने बुक भी खुली नहीं होगी. ऐसे भी है स्टूडेंट्स. Now this Ayan Khan is trying to enter every time. Every time he's entering and every time he's going out. I don't know for what reasons. Can I erase the students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बी सेल्फिश एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज. हमेशा सेल्फिश रहो स्टडीज के मामले में. बाकी मामले में जनरस रहना, जनरस रहो. स्टडीज के मामले में हमेशा सेल्फिश बनो. Now we go for students integration part and derivatives. So you go for calculus part of it. Calculus का अगर simple meaning में करता हूँ तो what exactly consider, you know? Calculus we simply consider as a kind of a definite
वे ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स इट वी कंसीडर। यानी अगर कैलकुलस में तुम देखोगे ना तो उसका भी कंसीडर इज इनफाइनाइटेसिमल है। इफ सी सम पीपल से कि हम लोग ने कैलकुलस शुरू किया, अगर तुम्हारे कोई सपोज फ्रेंड्स के साथ में तुम बात करते होंगे जो शायद तुम्हारे तुम्हारे इंस्टीट्यूट में है या तुम्हारे दूसरे इंस्टीट्यूट में भी है, किसी ने तुम्हें पूछ लिया भाई क्या चल रहा है फिजिक्स में, तुम बोलोगे कैलकुलस, हमारा कैलकुलस शुरू हो रहा है, कैलकुलस शुरू हुआ। तो कैलकुलस शुरू के अंदर अगर किसी ने पूछा व्हाट इज कैलकुलस, तो कैलकुलस के अंदर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू गो फॉर इनफाइनाइटेसिमल। देखो मैंने कैसे लिखा है, इनफाइनाइटेसिमल, ये n है स्टूडेंट्स, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल कैलकुलस। यानी हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वैल्यूज, जिसको हम बोलेंगे कैलकुलस ऑफ infinitesimal, very small values or very small change, calculus of infinitesimal। अभी ये जो कैलकुलस है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये थोड़ा सा अभी ज्यादा थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, यानी अभी ये नई चीज है जो तुमने 10th में कभी नहीं पढ़ी, तो डोंट वरी, इसको हम शांति से करेंगे। आई गेटिंग इट? नहीं समझ में आना तो बिंदास वापस अभी मैं पॉज करके पूछना जरूर, डोंट जस्ट टेक इट फर्दर, ओके? ओके। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये दो टाइप के स्टूडेंट्स, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंशियल के अंदर क्या करना मालूम है, डिफरेंशियल के अंदर वी ट्राई टू डिवाइड थिंग्स इनटू स्मॉल पीसेस। यानी इसका मतलब क्या मालूम है, यहाँ पे तोड़ना, टीचर्स बोलते हैं यहाँ पे तोड़ना और यहाँ पे जोड़ना। किसी चीज को हम ब्रेकअप करते हैं इनटू स्मॉल पार्ट्स। अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोर्स ऑफ जर्नी है, तुम्हारी कोर्स ऑफ जर्नी 4 घंटे की है, कहाँ से कहाँ तुम जा रहे हो 4 घंटे की, तो उस 4 घंटे को अगर तुम तोड़ते हो इनटू स्मॉल पार्ट, तो तुम स्मॉल पार्ट क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर स्मॉल पार्ट, 4 घंटे का स्मॉल पार्ट, तो सर 4 घंटे का 4 आवर्स का स्मॉल पार्ट मिनट्स भी हो सकता है, सेकेंड्स भी हो सकता है, मिली सेकेंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है, नैनो सेकेंड भी हो सकता है, पिको सेकेंड भी हो सकता है ना? तो उसको तोड़ना, तो जो तोड़ना होता है ना छोटा सा पार्ट, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। लेकिन अगर सपोज मैंने बोला है कि माय जर्नी हैज प्रोसीडेड, और जर्नी के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, यानी कौन से छोटे पार्ट? इनफाइनाइटेसिमल पार्ट। इनफाइनाइटेसिमल पार्ट को अगर मैं ऐड करता रहूं, 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 तो वो बन जाएगा मेरा इंटीग्रल कैलकुलस। इसलिए बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस को जोड़ना और डिफरेंशियल कैलकुलस को तोड़ना। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में क्या होता है, we take a physical quantity and in that physical quantity we try to break that physical quantity into smallest part, and over here all smallest part of the physical quantities is added. So now when somebody asks you what is differential calculus, I'm just putting it across over here. Differential calculus, students, is what? Which divides, students, it says which divides things into smaller pieces. It divides things into small pieces. Are you getting it? And tells us how they change from one moment to another, which divides things into small pieces, and what exactly? Tells us how they change from one moment to next moment. ये है तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस। यानी इसी सपोज सिंपल एग्जांपल में क्या करूं, अगर टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज इन आवर्स, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्ट, ध्यान से देखना, अगर तुमने यहां से स्टार्ट किया, यहाँ पे तुमने फिनिश किया,
उसका स्मॉलेस्ट पार्ट देखो, अगर मैं स्मॉलेस्ट पार्ट भी लूं तो इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये हुआ तुम्हारा स्मॉलेस्ट पार्ट। तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो सकता है? इट कैन बी मिली सेकेंड, इट कैन बी सेकेंड, इट कैन बी माइक्रो सेकेंड, इट कैन बी नैनो सेकेंड, इट कैन बी पिको सेकेंड। स्टूडेंट्स, हैव यू लर्न अबाउट मिली, माइक्रो, नैनो, पिको? पढ़ा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. See what exactly the conversion we consider? मतलब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, okay, deci, centi, I'll put in this manner. Friends, deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, atto, zoeta. That's what's different one. I'm going to go only up till atto. इस तरफ होगा तुम्हारा डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। और ये कहाँ पे पढ़ा है स्टूडेंट्स ने? All students have learnt in class 9th. All students have learnt in class 9th under chapter units and measurements. Maybe few boards may not have. Few boards may not have, but I feel so. ICC students, all of you have done it. Anybody from ICC over here? Yes, sir. किया है कि नहीं किया तुम लोगों ने? Yes, sir. किया है. Yes. Deci का मतलब 10 raised to deci we consider this. So 10 raised to -1. -1. 10 raised to -2, 10 raised to -3, 10 raised to -6, 10 raised to -9, 10 raised to -12, 10 raised to -15, 10 raised to -18। ये सारी वैल्यूज है। तो मैंने क्या बोला, इसी चीज को तोड़ना इनटू स्मॉलेस्ट पार्ट, तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। वो क्या है? वो है तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए क्या बोला मैंने? जॉइनिंग इट। ये क्या है? डेका हेक्टो का मतलब क्या? 10 raised to 1, 10 raised to 2 we consider, 10 raised to 3 किलो, 10 raised to 6, 10 raised to 9। ये सारे नेगेटिव में, ये सारे पॉजिटिव में। बस वही डिफरेंस है। देखो इंटीग्रल कैलकुलस के लिए अगर किसी ने पूछा तो क्या होगा? इंटीग्रल कैलकुलस क्या होगा? जॉइंट्स, स्मॉल पार्ट्स, ओके, टुगेदर, स्मॉल पार्ट्स ऑफ पीसेस together and tells us how much something is made up of, and tells us how much of something is made overall। यानी छोटे छोटे पार्ट्स को अगर तुम ऐड करो ना, सेम जर्नी, देखो ना, सेम जर्नी। सपोज अगर मेरे सेम जर्नी को मैंने क्लासिफाई किया, मैंने शुरू किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आई गेट इट, और मैंने एक छोटा सा पार्ट मैंने मिली सेकेंड में दिया। स्टूडेंट्स, इतने मिली सेकेंड में तुमने इतना जर्नी कवर कर दिया, वापस दूसरे मिली सेकेंड में, तीसरे मिली सेकेंड में, चौथे, यानी छोटे छोटे पार्ट्स को अगर मैं ऐड कर दूं, इट स्पीक्स अबाउट द टोटल टाइम फॉर जर्नी। देखो, joins small parts of time and tells us how much something, ये something हो गया, how much something is made overall। पता चला अभी what is differential calculus, what is integral calculus? Students, is it clear to all of you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पे सपोज मैं एक सिंपल तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या? चलो, व्हाट एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या, कोई बता सकता है? So the quantities which can be measured. Very good, by a physical instrument in physics। Okay, all those measurable quantities we consider in physics, all those measurable quantities in physics are called as physical quantities we consider। Are you getting it? क्या ये क्लियर हुआ सबको? Length, mass, time, temperature, volume, area, density, pressure, work, force, displacement, acceleration, momentum, torque, acceleration of gravity, energy, ये सारे measurable quantities we consider। ये सारे physical quantities हुए। क्या Yes. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. ओके, दूसरा अगर मैंने बोलूं व्हाट एग्जैक्टली कांस्टेंट का मतलब क्या? अ क्वांटिटी, ध्यान से सुना, कांस्टेंट का मतलब क्या? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स सेम थ्रू आउट, कभी भी चेंज नहीं होता। कभी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर कोई वैल्यू चेंज नहीं होता थ्रू आउट, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट।
भले तुम इक्वेशन में डाल दो उस कांस्टेंट को और कुछ भी इक्वेशन के साथ में खेलना शुरू करो, लेकिन वो जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है. बेस्ट एग्जांपल pi. Can you tell me who invented pi? Archimedes discovered it. Who found out the value of pi? Our great Indian mathematician Aryabhatta. अरे Okay, pi की वैल्यू तुम क्या लेते हो? 3.14 and so on. Is this value constant? Yes. कोई भी इक्वेशन कहाँ पे भी डालो तो पाई को हमेशा तुम 3.14 लेते हो या 22.7 लेते हो. हाँ कि ना स्टूडेंट्स? अरे हाँ या ना तो बोलो. Yes, sir. Yes, sir. यस दूसरा और एक है, ये ध्यान में रखना, अभी हम ये यूज करेंगे लेवल में. यूलर्स फॉर्मूला. एल्यूलर्स कांस्टेंट होता है ये एल्यूलर्स नंबर हम बोलते हैं इसको. ओके, एल्यूलर्स नंबर वी कंसीडर एंड दैट इज ई. एल्यूलर नंबर्स इज डिनोटेड बाय वेरिएबल ई और ये भी एक कांस्टेंट है स्टूडेंट्स. और इसकी वैल्यू है, लिसन केयरफुली, इसकी वैल्यू है 2.718. 28 डॉटेड. ये भी कांस्टेंट है. E is Euler's number we consider and that is a constant. और ये कहाँ पे यूज होता है? मतलब logarithmic functions में. अगर तुम्हें ध्यान से मालूम है तो मैंने लिखा होगा log. ध्यान से सुनना, log of any number to the base of e. मैंने क्या बोला था? ये exponential है. What is this we call? ये जो e है ना, that is your Euler's number. It's an exponential we consider. अगर इसको तुम्हें to the base of 10 में convert करना है स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिखेंगे? 2.303 log of x to the base of 10. यानी ये हमेशा ध्यान में रखना, अगर कोई भी log of particular value दिया है to the base of e that is given in terms of exponential we consider, can I convert it to the base of 10? Yes, simply 2.303 log of x to the base of 10. ये जो small e तुम देखते हो, what is that we consider? It's Euler's number. Is it a constant? Yes, ये constant रहता है throughout. तो जब भी तुम एल्यूलर्स नंबर के बारे में पढ़ो तो ये ध्यान में रखना 2.71 एक कांस्टेंट वैल्यू. इसको तुम कहाँ पे ज्यादा प्रिसाइसली यूज करोगे? किसने पूछा तो क्या करोगे? लॉगरिथम्स में. ये कौन सा रिलेशन है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि नीचे मैंने ई लिखा है. इसको क्या तुम टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो? यस, क्योंकि जो भी तुम्हारी लॉग बुक्स होगी ना स्टूडेंट्स, सारे वैल्यूज टू द बेस ऑफ 10 है. तो इसको कैसे लिखोगे? 2.303 log of x to the base of 10. क्या इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, यस sir. यानी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दिया, कांस्टेंट्स के बारे में बता दिया, एल्यूलर्स नंबर के बारे में बता दिया, ई का मतलब दिया कि एक्सपोनेंशियल से हम लोगैरिथमिक टू द बेस ऑफ 10 कैसे कन्वर्ट करते हैं. डेफिनेट कैलकुलस का मतलब क्या? इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब. डन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next lecture will be continuing further ahead, so kindly revise the previous one and if time go through your lower standard books and try to finish it off. Okay students, shall we wind up? Yes, sir. Yes, sir. Very good Rakshit, you try to answer. Okay, chalo, bye, take care. Thank you, sir.